अच्छा देखें, अब मुझे ये बताइए कि ये वर्ब लाइक दिस इज द वर्ब व्हिच मींस टू बी कॉल्ड सप्ले, ठीक है? सफर। Yeah, supple is a verb which means to be called in French, and French people use this verb for asking and telling someone's name. ठीक है? So सर first of all, you need to understand the conjugation of this verb. It's je m'appelle. Okay, I'm just erasing this someone's name. Je m'appelle, and I can't write Mustafa maybe. No, Danish Mustafa. Mustafa. Okay, so Acha, would you mind to switch off your camera? इट्स फिट ऑफ सर। Thank you. Acha ji. So sapule is a verb which means to be called oneself. It's a reflexive verb. और what happens in the reflexive verb? कि reflexive verb में हम verb को conjugate करने के साथ उसके pronoun भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं. Me, for example, okay. Te, you see this small things. Te, उसके बाद s apostrophe se, nu, vous, and il s'appelle. So we use in the reflexive verb we use subject pronoun as well with the subject. तो ये तो इस लाइन में तो subject है जो you, il, elle, nous, vous, il, elle, और reflexive verb में हम ये additionally इस्तेमाल करते हैं. तो we will discuss this in detail in further classes के what are these and how we use this. अभी सिर्फ सर normal conjugations आप देखें. Je m'appelle Mustafa, my name is Mustafa, या I am called Mustafa, इसका ये हो सकता है. Tu सर t'appelles Robert, your name is Robert. Il s'appelle means his or her name. Nous nous appelons, we called ourselves. Vous vous ओवर appelez, नेम। yeah, you called yourself. Il s'appelle, they called yourself. अब फ्रेंच पीपल एक वर्ड यूज करते हैं कमो. कमो का मतलब होता है हाउ. उर्दू में इसको कहते हैं कैसे, किस तरह. ठीक है, कमो. तो ये वर्ड आपने यहाँ लिखा कमो, और त्यू तपेल की कॉन्जुगेशंस आप यहाँ पर लेकर आ गए. कमो त्यू तपेल. So this become automatically a questions. Como tu t'appelles? What do you call yourself? Let me set the language. Basically, it's giving me the red sign. This means I have to set the French language. Yeah. So सर now, so now it disappeared the red line and it's coming the blue line. This means this is okay. So, comment tu t'appelles means what do you call yourself? Yeah, what is your name? Okay, it's an informal सर way or impolite way. For example, you are my friend. I could ask these questions. Comment tu t'appelles? And you can answer Je m'appelle Mustafa. Okay, let's practice. सर Comment tu t'appelles? जमा पहल मुस्तफा। Bien. Can you ask my name using the same word? कमो तू तपेल। Je m'appelle Danish. Okay. So, comment tu t'appelles are the words for asking names. What is your name? Yeah, what do you call yourself? If I said like Je m'appelle Danish, so I can ask, like Je m'appelle Danish. Et toi? If I say this thing, if I write this word, इसका मतलब है I'm asking about yourself. एंड यूअर्स बिल्कुल हाँ, एंड यूअर्स and है ये। yours, ठीक है. It's understood. Je m'appelle Danish et toi. This means you can इतवा tell me your own name. But we already asked each other's name, so we don't have to reply this. So सर now French people use this word like this, come on. अब अगर हमें किसी और का, अच्छा, one more thing, we can change the sequence of these words. देखिए यहाँ पर कमो त्यू तपेल था और यहाँ पर मैंने कमो तपेल त्यू कर दिया इस लाइन में. So it happens in language, in French language. Comment t'appelles-tu? Meaning वही रहेगा. What is your name? Yeah, tu t'appelles comment? Meaning वही है. What is your name? Do you understand? इसको आगे पीछे करने से इसकी वो चेंज नहीं हो जाएगी फिक्र की जो बनावट है। Mustafa, can you give me 30 seconds? तो प्लीज Bonjour Néa. Oui, oui, je me rappelle, je vous ai envoyé un message aussi. Alors maintenant, je prends une classe. Si ça c'est possible pour toi, tu peux me contacter après 1 heure. Ça va? Merci. अच्छा, अब देखें यहाँ पर comment tu t'appelles comment? Yeah, what was your question? Sorry for the interruption. सर What was your question? मैं क्वेश्चन दिस के अब हम इसकी पोजीशंस चेंज कर रहे हैं। कमो तू तपेल को लिख रहे हैं कमो तू तपेल तू। Hmm.
और तूतापेल कमो इसको आगे पीछे करने से इसका मतलब चेंज नहीं हो जाएगा, मीनिंग नहीं, विल बी चेंज और नॉट? देखिए नहीं, ओनली इन बेसिक सेंटेंसेस व्हेन वी आस्क नेम इट हैपेंस इन फ्रेंच लैंग्वेज। वी से कमो tu t'appelles, व्हाट इज योर नेम, tu t'appelles कमो, व्हाट इज योर नेम, सेम थिंग। सो इसमें इसे मीनिंग इसका आउट नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है? सही। Okay, so now I'm going to teach you this way, like kamo tu t'appelles kamo, तो ये तो हम समझ गए। अच्छा, तो this was the informal way. So before learning you must understand that in French there is a formal or informal system. What is informal? Informal system we use तुम, जैसे उर्दू ज़बान में अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ उर्दू ज़बान का, तो हम कहते हैं ना तुम, तो तुम तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल वही फर्क है? फ़र्क है, एग्जैक्टली। तो यही फ़र्क फ्रेंच में भी होता है। और हम तुम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जांपल जो हमारा दोस्त हो, जिसके साथ हम फ्री हो या हमसे छोटा हो, तो इस तरह फ्रेंच में होता है। उसके बाद वो हम उस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जब हम किसी बड़े से बात कर रहे होते हैं, इज़्ज़त के पोलाइट वे में, रिस्पेक्टफुल वे में, जब हम वो इस्तेमाल करते हैं। सो वो कैन बी यूज फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल पर्सन एज वेल, ठीक है? शुड नॉट बी कंफ्यूज कि जी वो अकेला प्लूरल ग्रुप के साथ यूज़ होगा, नहीं। वो जो है एक आदमी के लिए भी यूज़ हो सकता है, अगर हमसे बड़ा हम उसको रिस्पेक्टफुली में एड्रेस कर रहे हैं तो बोलेंगे वो ज़ेत मुस्तफ़ा, आर यू मिस्टर मुस्तफ़ा? You can say oui, je m'appelle Mustafa. Yes, je suis Mustafa. Yes, je m'appelle Mustafa. I am Mustafa. Okay. And if I have 2 or 3 more than this student, I would use vous êtes Monsieur Ali et Madame Alina. Do you understand? इस ठीक गेटिंग है, इट। तो ये अब हम पोलाइट वे बेसिकली सीखने जा रहे हैं। तो ये तो हो गया जी कमो तो तपल सीक्वेंस हो गया। अब पोलाइट वे में वी ऑलवेज यूज वू, ओके, वू फॉर्म। दिस इज कॉल्ड वू वॉये इन फ्रेंच, ओके। सो नॉर्मली इनफॉर्मल वे को अगर मैं बोलूँ तो फ्रेंच पीपल कहते हैं ट्यू टुआइये, ओके, ट्यू टुआइये, इसका मतलब तुमसे बात करना। और फ्रेंच में पोलाइट वे को कहते हैं जी वू वॉये वू, और आगे वी ओ वाई या वो वाई, लेट मी फिक्स दिस, या वो वाई। इस वर्ड्स का वो वाई का मतलब है कि आप जनाब से बात करना। अब देखें इस सेंटेंस में, इफ़ यू फोकस ऑन दिस वन, यहाँ पर लिखा हुआ वो जपले वो कमो वो जपले मस्यू, व्हाट डू यू कॉल योर सेल्फ मिस्टर, या व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है? मैं इसको और शॉर्ट कर दूँ ताकि कंफ्यूज ना रहे, ठीक है? ये हो गया क्वेश्चन, कमो वो जपले मस्यू, कैन यू आंसर योर नेम? जमापेल मुस्तफा। तभी एंड यू कैन इवन ऐड एवू, ठीक है ना? एवो। या एवू, एंड अगर आपने पूछना चाह रहे हैं मेरा नाम, ठीक है, तो कमो वो जपले मुस्यू, आपने कहा जुमापेल मुस्तफ़ा एंड एवू। वी कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ दिस वन एज वेल एंड वी कैन से कमो वो जपले वू। हम इन दोनों की सीक्वेंस इस तरह चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाता है फ्रेंड में जुमापेल दानिश, आंसर वही रहेगा, ठीक है? नाउ यू गोइंग टू लर्न हाउ टू आस्क समवन्स नेम, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, कि किसी तीसरे आदमी का नाम हमें कैसे पूछना है, ठीक है? तो अगर लड़की है तो हम इस तरह बोलेंगे कमो एल सपेल। अच्छा, अब मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, वेरी बहरल मैंने इसे डायरेक्टली इस तरह लिखा, कमो एल सपेल, यस, कमो एल सपेल, आई रिमूव एवरीथिंग, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। इस सेंटेंस का मतलब है व्हाट डज शी कॉल, उसका नाम क्या है लड़की की, व्हाट्स हर नेम? व्हाट्स हर नेम। और सपोज दैट हर नेम इज मन्नत, हाउ कैन यू से इन फ्रेंच? आई विल से दैट एल सपेल मन्नत। वेल डन, कमो एल सपेल, encore une fois, one more time please, एल सपेल मन्नत। एल सपेल मन्नत, très bien। अगर आपके भाई का नाम अली है और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपके भाई का नाम क्या है फ्रेंच में, तो मैं बोलूँगा कमो सपेल ton frère, बिकॉज यू डोंट हैव मच वर्ड नाउ, तो इसलिए मैंने इसको पहले वाले को तो सिंप्लीफाई। I'm totally getting this, sir. I know these. I'm telling that I'm having good vocabulary now in French. अच्छा, But ओके, वेल डन। ये मुझे सारा समझ आ रहा था, ये मैं पढ़ चुका हूँ सारे। अच्छा, ओके, नो इशू। अच्छा, But कमो, my actual problem is this grammar and tenses like thing. नो वरीज, नो वरीज, आई एम मास्टर इन ग्रामर, डोंट यू वरी Sir, अबाउट दिस। अच्छा, sir. सो मैं आई एम गोइंग टू आस्क यू योर ब्रदर्स नेम एंड द आंसर इज रिटन ओवर हियर।
Ok, Mustafa, comment s'appelle ton frère? Mon frère s'appelle Ali. Well done. Il a quel âge? अब मैंने एक और क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है? Il a quel âge? How old is he? Il a या quel âge? हम इसको एक काम करते हैं, इसको नया क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है? Il a quel âge? How old Mhm. is he? Use il a 20 ans. He is 20 years old. Can you repeat with me? Il a quel âge? Il a quel âge? Acha, can you answer now? If suppose that he is 20 Il a years. il a 20 क्या बोलेंगे? 20 बोलना मुझे नहीं 20, आता. 20. Il a 20 ans. 20 20, 20. 20 ans. Yes. Il a 20 ans. He is 20. अच्छा Il a अब 20 ans. 20 ans. Yes, 20 ans. 20 is 20 and we have to make the liaison of the last T with a. That's why Sir, it's become 1. there's a funny thing that, sir, the name of my village is Van. Sorry. अच्छा अच्छा The name of my village is Van. अच्छा अच्छा ओके नो प्रॉब्लम सो अच्छा ठीक है ओके गुड अब हम चलते हैं जी मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ आपने क्वेश्चन क्या बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ हाउ डू वी आस्क एज इन फ्रेंच सो वी विल डू दिस नाउ राइट अवे बट लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन comment s'appelle ton père? Mon père s'appelle Marie. D'accord, très bien. Mon père s'appelle Mavi. Sounds good. So we asked third person's name using this one. ठीक है. अब आ जाएं जी हम the other way around. How can we use this verb appeler? You know, can you see before I wrote here sapele. ये लिखा मैंने यहाँ पहले sapele लिखा था, ठीक है? This means to be called oneself. और इसको अगर Sir, मैं विदाउट रिफ्लेक्शन में यूज़ करूँगा तो अपले भी यूज़ कर सकता हूँ यानी मैंने एस अपोस्ट्रोफी हटा दिया, ठीक है जी? first of all. अपले अब इसका मतलब चेंज हो गया, इसका मतलब हो गया टू कॉल यानी इसको हम दूसरी वेरियस वे में इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुस्तफ़ा tu peux appeler un taxi pour moi. Mustafa, tu Can you peux call a taxi for appeler me? un taxi pour moi. Voilà, très bien, oui, c'est ça, that's it. ठीक है. या मैंने कहा appelle Robert, call Robert. Mhm. Téléphoner, qu'est-ce que tu as fait parler? Téléphoner lui. या मैंने कहा उसको कॉल करें. Téléphoner lui, Mhm. call him. Do you Mhm. understand? So we can So use getting. this verb without reflection. ओके और रिफ्लेक्शन के बगैर हम इसका मीनिंग इस तरह कॉल के तौर पे लेंगे, ठीक है? Mhm. फॉर एग्जांपल je téléphone à mon père. I call my father. मैं I अपने call my पापा father. को फ़ोन कर रहा हूँ. How can you say I call my brother? Je téléphone à mon frère. Frère, well done. Je téléphone à mon frère. Basically, Mon téléphoner is frère. also a verb in French, but here I use as a conjugated form. और मोबाइल टेलीफोन को कहते हैं portable téléphone. Portable. पोर्टेबल, ठीक है? टेलीफोन अप टू यू लोग इस्तेमाल करते हैं. एक चीज़ रह गई जो मैं बताना चाह रहा था, हाउ वी आस्क एज इन फ्रेंच. सो मैं या हम अगली क्लासेस में कर लेंगे, चले नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो अभी जो लिखा हुआ. अब आ जाएं जी एक नया वर्ब आपको आ रहा है अले. यू नो व्हाट इज़ दिस? No, sir. अले इज़ अ वर्ब विच मीन्स टू गो, ठीक है जी? इन होल फ्रेंच दिस इज़ द ओनली वन वर्ब विच एंड्स ऑन ई आर बट इट्स रेगुलर. आई शुड से इट्स इरेगुलर, ठीक है? तो Sir. इरेगुलर में ई आर पे एंड होता है बट इट्स इरेगुलर वर्ब. अब देखें दीज आर द कॉन्जुगेशन. वाई इट्स इरेगुलर? बिकॉज द कॉन्जुगेशन आर नॉट वेरी सिमिलर टू द वर्ब, इसलिए इसको इरेगुलर कहते हैं. je vais, I go, tu vas, you go, il, Mhm. elle, on va, she goes, He nous goes. allons, we go, vous allez, you go, ils, elles vont, they go. अच्छा What is the meaning of Vusale? you go. Third person singular. No, it's a second person Sorry, singular sir. oblique plural but in a polite way. वही वाला जो आप वाला फर्क है, ठीक है ना? Sorry. ठीक है ना? यानी Vusale. हाँ vous allez. You और you एक ही चीज़ है बट फॉर्मल और इनफॉर्मल का फ़र्क है. अच्छा अब Mhm. फ्रेंच पीपल ये वर्ब इस्तेमाल करते हैं जी
एक तो आने जाने के लिए। तो पहले इसका जी पहला सेंस देख लें, हाउ दे यूज दिस वर्ब फॉर गोइंग समवेयर। जैसे je vais au cinéma, can you see this written? You go to cinema. I go to the cinema. I go to Je cinema. vais à la piscine. I go to the swimming pool. Je vais à l'école. I I like go to cool the school. school. अब you might have noticed that every word having a different preposition. तो इसका मतलब we'll have to focus on the preposition in further classes, क्योंकि Okay. prepositions are also according to the nouns gender. तो हमें ये थोड़ा सा अगली क्लास में हम सीखेंगे जी। हर देखें, हर किसी के हर का मतलब वही है, टू, एट और इन, इंग्लिश के हिसाब Mhm. से। बट I'm going to cinema. I'm going to swimming pool. I'm going to school. हर चीज वही. वाला वही चीज़ है, ठीक है जी। तो एक तो ये इसका सेंस हो गया, हाउ डू। और अगर आपसे पूछूं कि वेयर आर यू गोइंग, तो आई वुड बी आस्किंग लाइक दिस, फॉर एग्जांपल, ऊ टू, where do you go? But this u has a special character on it, so let me put this one. Yes, où vas-tu? Where are you going? Où vas-tu? Where are you going? I'm going to the market. I can say je vais au marché. M-A-R-C-H. Okay, it should be written with an accent at the end. Marché. Je vais au marché. I'm going to the market. So does it make sense to you how we use this word? सर. अच्छा, But again, sir, how? this आपने a यूज किया मार्क्शे से पहले. You वे a मार्क्शे. O A marché. you. O. O मार्क्शे. O हाँ, मार्क्शे. This thing is confusing for me when we have to या use a or o हाँ, or e. मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि प्रीपोजिशन फॉर द प्लेसेस, रिकॉल द प्रीपोजिशन फॉर द प्लेसेस, टू, एट और इन, तो ये चेंज होते हैं फ्रेंच में अकॉर्डिंग टू जेंडर। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फेमिनन थिंग, feminine place, this should be ala. So piscine was the feminine word here, okay, do you understand? So that's why I use je vais à la piscine, I go to the swimming pool. फिर उसके बाद je vais à l'école, I go to the school. So à l'école, school is a feminine word in French, but it was starting from a vowel. So that's why Allah becomes L apostrophe, à l'école, and we joined this word, à l'école. I go to the school. फिर रह गया जी सिनेमा या मार्केट वाला, मार्शे। तो मार्शे इज अ मेल नाउन, तो विद मेल वी यूज ओ। वी विल बी वर्किंग, वी विल बी लर्निंग प्रॉपरली इन आवर फर्दर सेशंस, ओके, अबाउट द Sir. प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो ये चेंज इस वजह से है। Sir. अच्छा, अब हम आ जाते हैं। अच्छा, हाउ कैन यू आस्क मी वेयर आर यू गोइंग इन अ पोलाइट वे? इट्स रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट वो साले. वेल डन। और आगे ऊ लगा दें। Où le gars, where are you going? हाँ, Où vous allez? vous allez, very nice. Je reste à la maison, je ne vais pas ailleurs. I say I'm staying at home, I don't go anywhere. So we say like this, very good, you trying well. अगर इसको आप कन्वर्जन कर दें, यानी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दें, जिस तरह ये हमने इसके साथ लिखा है, ठीक है, what you, अगर हम अले वो बोल दें तो फिर और बेहतर सेंस हो जाएगा। ऊ अले वो, कैन यू से इट विद Où, ऊ où अले वो? allez-vous? je vais au marché, आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये Good. तो इसका आने जाने वाला सेंस। अब हम सीखते हैं जी, फ्रेंच पीपल यूज़ दिस आले फॉर आस्किंग हाउ आर यू गोइंग। एक्चुअली हाउ आर यू गोइंग नाउ अडेज, आजकल आप कैसे हैं, उर्दू में जैसे हम पूछते हैं, ठीक है। Comme ça va? तो Comment ça va? कमो सावा, बेसिकली कमो सावा का मतलब होता है हाउ इट्स गोइंग, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, कमो How सावा। are you? हाउ आर यू, हाउ आर यू, बिल्कुल इसका मीनिंग, इसका सेंस यही होता है, बट लिटरल Mhm. मीनिंग होता है हाउ इट्स गोइंग, कैसा चल रहा है आजकल, ठीक है। Mhm. तो अब देखें, अब इसका जवाब क्या है, सावा बिया। Ça इफ़ va यू bien. आर ओके, सावा बिया। इफ़ यू आर Very well. very well, you can say ça va très bien. Très If bien. Très you bien. are not good, you can say only pas mal, यानी not bad, ठीक है जी, ना ही अच्छे ना ही बुरे, ठीक है, pas mal, इस तरह भी Pas आंसर mal. हो सकता है। ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, इनको इसी तरह मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, कम सी कम सा इज ऑल्सो सो सो, नॉट गुड नॉट बैड। बट देयर इज अनदर थिंग विच आई हैड टू गिव यू,
which is sawa mal. सावा माल का मतलब है आई एम नॉट गुड. सावा माल मैं खैरियत नहीं है इसका मतलब, ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ. आई माइट बी सिक. सावा माल, ठीक Sabamal. है, सावा माल. अब अगर फॉर एग्जांपल आई आस्क यू कुड यू मेंशन योर ओन मूड, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Como ça va, Mustafa? Ça va bien? Okay, d'accord, très bien. So even we can ask et toi also. Here we can add this one. Comment tu vas also. Question how are you? Comment vas-tu भी पूछ सकता हूँ. ये देखें, they have all the same meaning. यही मतलब है कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं. So this was all informal way. यहाँ से कमों से लेके ये सारा informal way. This is called informal way. But except kamosawa is used frequently now, so we can't say it's 100% informal. It's a way just for asking. But otherwise, kamo tiwa or kamo watiu tiwa kamo, these are all informal. Or sawa très bien, pas mal, bof, kam se kam sa, these are formal. You can use it frequently. अब आ जाएं जी. कमो तलेवू, दिस मीन्स हाउ आर यू गोइंग. इट्स अ पोलाइट वे, ठीक है, पोलाइट वे. पोलाइट कैन बी सिंगुलर एंड प्लस प्लूरल. You can say formal way. हाँ, फॉर्मल में. पोलाइट ऑब्लिक फॉर्मल भी लिख दूँ. FORMAL फॉर्मल, ठीक है जी, ऑब्लिक सिंगुलर एंड प्लूरल. अब this is a sentence what you can listen everywhere. Como allez-vous, monsieur, madame? Como allez-vous? How are you? And you have to make the liaison with this T with A. Como allez-vous? Okay, this is very necessary. You remember a rule I gave you about the liaison rule? Uh, Not completely, but somehow. Okay, I can refresh. As soon as the word starts from vowel, so we apply this liaison rule. We attach the last letter of the precedent verb or word with this vowel. So it will be like kamo talebu. हम T का sound इसमें add कर देंगे, ठीक है, Como because talebu. T is consonant. Vowel होने की वजह से A vowel है यहाँ पर. That's why I just wrote Sure. it in red. So vous avez compris? Did you understand? I'm getting it, sir. D'accord, très bien. Ce sont les voyelles. Ce sont les voyelles. These are vowels. A, E, I, O, U, H, Y. These are the vowels in French. And how can you reply this polite answer? Je vais bien, merci. That's all. Et vous, if you want to say. It's written over here. Can you read, please, further? Which was the red one? जी जी. सारे पढ़े यहाँ से Uh, नीचे तक. Je va bien, merci. Comment ça va? ठीक है. Ça va bien. This one. Ça va. Pashwa. Paswa. But you Sorry? say ça va pas bien. नहीं, सन va pas. This is सन va pas. It's not going good. It's Okay. not good. यानी you not okay. pas bien. Ça ne va pas. हाँ, सन va pas. It's not going good. Okay, sir. इसमें bien बिल्कुल silent हो गया, sir. हाँ, because negation आ गया ना. These are the negative sentence. You didn't learn yet negative sentence in French. मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ, इसका ये मतलब है. I'm not good. Ça ne va pas. सन va pas. अच्छा, pas bien. Not good. Ça va But mal. अच्छा, ये देखें आगे लिखा हुआ है. Ça va mal. ça Going va bad. mal. pas mal, not Pas bad. mal. सारे expressions लिखे हुए हैं जो possible expressions हो सकते हैं. It's enough on this level. Être, this is a verb être. Can you read the conjugations of this verb? Je suis. Carry on. Tu es. Tu es. A. Tu es. Elle. On. First Elle. On. one is il, elle, Il. on. Il, Elle. On. elle, on. Il. Elle. On. Est. Okay, il, elle, on est. Yes. Next one, nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Yes, carry on. Elles sont. Awkward. Okay, d'accord.
अब अच्छा, इल्सो एंड एल्सो दे आर फॉर मेल, दे आर फीमेल। अच्छा, अब यू कैन क्रिएट सेंटेंस। आप कह रहे हैं कि मुझे ग्रामर में इशू है, तो नाउ यू Sir, कैन क्रिएट द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, je suis garçon, I am a boy। I am a boy. je suis un garçon, I am a boy, ठीक है। और garçon would be written with an accent underneath of C, C के ऊपर आता है सर। हाँ, cedilla underneath, this is called cedi, cedi en français। je suis un garçon, ठीक है। अगर आप yes, sir. स्टूडेंट हैं, यू कैन ऐड Etude, étudiant, etudiant. étudiant, okay, Sir, here I étudiant। want to ask a question, sir. When मुझे यहाँ मसला होता है कि एतुदियंट के स्पेलिंग कभी एतुदियंत लिख जाते हैं, कभी एतुदी लिखे होते हैं, वो थोड़ा सा मिक्स होता है मुझे। अच्छा, या बिकॉज यू आर मिक्सिंग द वर्ब विद द नाउन, ठीक है। यू नीड टू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज अ वर्ब इन फ्रेंच। étudier, this is a verb which means to study। टू स्टडी, Yeah, if you say I study, you would be writing in this form étudie, एतुदी, j'étudie, and sign on E। For example, j'étudie le français euh, avec Monsieur Danish। I study French with Mr. Danish। Do you विद understand? मिस्टर दानी सर। J'étudie। If you are doing like BBS, MBBS, j'étudie dans le सर cours de MBBS, सर etc. सर, आई वांट क्वेश्चन सर। Yes, yes, जस्ट रिटन जेतुदी ले फ्रांसे, यू हैव रिटन LE। yes. Sometime I mix this LES here. For example, why we have not written Acha. LES Yeah, okay, good question. or By the way, these are LA? articles. These are articles, definite articles, and they varies according to the noun genders. Here, the noun fonse was the male this time. Okay, so these are the article, definite article. So I think we should do definite article later. Maybe if I have something, so ये क्योंकि अगर मैं ये कराऊंगा वो मिक्सअप हो जाएगा। अभी शायद हम इस क्लास में इसको कवर करें। लेट मी सी, ये आर्टिकल्स हैं। सो आर्टिकल्स वेरीज करते हैं डिफरेंट लाइक जेंडर। अगर आप अभी चाहते हैं मैं इसको अभी बता दूं, या ये No, कि sir, हम feel इसको free. बाद में कवर करें, Go बताइए। on with your routine, sir. हाँ, मेरा ख्याल है कि हम थ्रो प्रॉपर चैनल अगर चलें, क्योंकि अगर जैसे बीच में मैं इसको एड्रेस करूँगा तो फिर क्या होगा, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है क्रिएटिंग सेंटेंसेस, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। Sir. अच्छा, जेटूदी लोफोंसे वाज द वर्ब। अब हम यहाँ आते दोबारा से इस जगह पे, यानी हाउ कैन वी राइट सिंपल। अब सपोज दैट आपने कहना है जी अली इज़ पाकिस्तानी, यू नीड दिस वर्ब, अली ए Ali, पाकिस्तानी, दैट्स ऑल। Ali is Pakistani। You need to add here if there is a girl, for example, अगर हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं, then you have to add e, Pakistanese। For example, I can give you a rule, Alina a Pakistanese। Does it make sense to you? making sense. ठीक है, अलीना ए पाकिस्तानीज में अली ए पाकिस्तानी। One more thing, there is a rule and you write it down somewhere in register. Whenever you have class, you must have register with you, you I'm write having, sir. date. I'm having it. Okay, that's good, thank you. And you write, for example, there is a rule for beginners, so you have spare, you keep some pages spare at the end and you can write the rules regulation. So there is a rule in French, as soon as a noun ends on E, can be feminine at least 80%. I repeat, as soon as a word starts on end on E, can be feminine. Okay, 80% Hmm. feminine. There is a chance of 80 or 90% that this noun can be feminine. Okay, but Mhm. always there are exceptions. So exceptions भी होते हैं, तो ये एक रूल हो गया। उर्दू में बता देता हूँ, यानी कोई भी नाउन जिसके आखिर में ई आता है उसको हम फेमिनिन तस्वुर कर सकते हैं 80 और 90%, ठीक है ना। Sir. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके आखिर में ई होता ही होता है, तो उसको हम फेमिनिन के लिए उसी तरह लिखते हैं, उसमें एडिशनल ई नहीं डालते, ठीक है। एक Sir. तो ये हो गया। और दूसरा इसका, यानी तीसरा इसका आप लिख सकते हैं कि हम नाउन को ई ऐड करके फेमिनिन बना भी सकते हैं, ठीक है। ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने अभी बनाया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान डू यू अंडरस्टैंड। Sir. आपने ये लो फोन से का पूछा था मुझसे, वी कैन मेक इट फेमिनिन।
बट ये अगर मैं इसको फेमिनिन बनाऊंगा तो फिर ये लैंग्वेज बन जाए, फिर ये नेशनलिटी बन जाएगा। अभी यहाँ पर फ्रांसे जो है वो एज ए लैंग्वेज लिखा हुआ है, यानी फ्रेंच लैंग्वेज, डू यू अंडरस्टैंड? सर सर ठीक है ना? तो ये इस वक्त लो फ्रांसे यानी द फ्रेंच लैंग्वेज लिखा हुआ है। अगर मैं इसको, अब चलें ये शुरू हो गया है पर, तो मैं इसको इस तरह लिखूं कि je suis français, तो देखें जी, je suis français। अब अगर लड़की होगी तो ये एडी हो जाएगा, वेर इज je suis française, डू यू अंडरस्टैंड? सर गेटिंग इट। ठीक है जी। अब अगर आप ये बोलते हैं आई लर्न फ्रेंच देन लो फ्रांसे, तो ज़बान हो जाएगी या ला फिर ये फ्रांस। ज़बान हो जाएगी। तो इट्स हैपन लाइक जर्मन में भी और दीगर कंट्रीज़ के साथ। पाकिस्तान में नेशनलिटी डिफरेंट है, पाकिस्तानी और ज़बान उर्दू आ जाएगी या रीजनल लैंग्वेज कोई भी आ जाएगी, ठीक है ना? अब आ जाए je suis française, avoir, avoir is new word, okay? You note it down please, read it and learn it by heart and write it अगवा somewhere. You have, yes. अगवा Carry on, full conjugations. जे उन्हें वचू ठीक है, अच्छा, यू जस्ट रीड द कॉन्जुगेशन, डोंट रीड दिस सेंटेंस जे यू आ इल एल आ, इस तरह पढ़ें। कंजुगेशन में सर जो यूएन ही लिखा हुआ है या यूएन इस लिखा हुआ है। हाँ, इसको हटा देते हैं। चलिए अब पढ़िए। जे, जे हाँ, ये टू अस यू आ, यू आ। अब नाउ इट्स देखिए ओके। इधर मैं फंस गया हूं, मैं इसको मैं अस पढ़ रहा हूं कि है असल में आ, ये मुझे कैसे पता है इसे क्या हाँ, पढ़ना है। देखें ये नॉर्मली फ्रेंच में क्या होता है, हम लास्ट कॉन्सोनेंट को ना वो प्रोनाउंस नहीं करते, बट अनदर टाइम वी डोंट हैव पर्टिकुलर रूल्स। आमतौर पे ऐसा होता है कि 80% रूल अप्लाई होता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम इसको प्रोनाउंस आ करते हैं। स्पेसिफिक रीज़न तो इसके कोई नहीं है, बस यही है कि जी हमने इसको आ बोलना है, दैट्स ऑल। सही। आगे चलिए। सर एक सेकंड में मैसेज कर लूं, तो भाई की कॉल आ रही है। हाँ श्योर, प्लीज टेक योर टाइम। डन डन डन। नो नो And the श्योर। next one is L L A ठीक है, वेरी गुड। uh, nous avons Nous avons, nous nous avons avons. nous avons Yeah, vowel, make liaison, yes. nous avons uh, vous avez Vous avez, vous avez. vous avez vous avez vous avez ठीक है। and next one is L ont Ils ont. elles ont Yes, ils ont. They have for male, they have for female. elles ont अच्छा जी। Okay, so now how can we use this verb in sentences? How can we use, for example, मैंने लिखा जी, j'ai une voiture, I have a car, I have a car ठीक है। Tu as un stylo, do you have a pen well done, ठीक है। an stylo, and ये यून और आ जो, दिस इज ऑल्सो आर्टिकल, सो अभी अगर हमें टाइम मिला तो हम इसको भी करेंगे। सो वी यूज दिस वर्ब फॉर शोइंग आवर पोजिशन एंड वट एवर वी हैव, ठीक है। इट्स सबवा, सो यू लर्न बाय हार्ट दिस वर्ब। अब आ what जाएंगे इस लाइन पे, हमने इसको मैं रिमूव करता हूँ, यस, एज पूछने के लिए। अच्छा तो चलें, अच्छा हुआ ये एज वाला आ गया। अच्छा, you remember this thing that we use avoir, this word, for asking age also, and for telling of giving our age. एज भी पूछते हैं फ्रेंच पीपल, avoir वर्ब को यूज़ करते हैं, कहते हैं कि हाउ ओल्ड आर यू, इसका ट्रांसलेशन ही होगा, बट लिटरली मीनिंग क्या होता है कि हाउ, व्हाट एज डू यू हैव। ठीक है जी। quel âge as-tu, कैन यू से इट विथ मी, quel âge quel as-tu, quel âge as-tu हाउ ओल्ड आर यू। अगर मैं 27 का हूँ तो मैं बोलूँगा j'ai 27 ans, j'ai 27 ans, j'ai ठीक है। 27 ans यस, आई एम 27। इसीलिए प्रॉपर क्वेश्चन में पोलाइट फॉर्म में उन्होंने दोबारा से देखें, quel âge avez-vous,
ओल्ड आर यू, कैलाश पोलाइट अवेवू। वर्ब में यूज़ कर लिया उन्होंने, तो आंसर वही होगा दोनों के लिए, ठीक है, चाहे पोलाइट हो या इनपोलाइट हो, इम्पोलाइट हो, आंसर का तरीक़ेकार वही है। कैन यू आस्क माई एज? कैलाश बाबू, अगेन प्लीज। कैलाश बाबू, Avez-vous? Quel âge avez-vous? कैलाश अवेवू। J'ai 40 ans. I'm 40. Do you understand now? गेटिंग इट सर। Voilà, très bien. अच्छा, तो we stop it here, इस लाइन पे, and I need to bring you on book now. ठीक है, so इसको मैं c'était jeudi. I will send you, if you want I can share this file with you. सर ये वर्ड फाइल कंटिन्यू जगह शेयर कर दे आप तो इजी हो जाएगा मेरे लिए ये बहुत। कर दूंगा अब वही, तो ठीक है, वट एवर रिटर्न इन अंडरलाइन ऑफ दिस यू कैन इग्नोर, कि हमने अच्छा, यहाँ तक किया, ठीक है, बिकॉज आई नो यूज वरीज। मल्टीपल